अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेगम्स पे एक डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट पे ज़रा फोकस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खुद एतमादी की। सबसे पहला स्टेप है कि अपने आप को पहचानो, और ये तो हमारे एक स्पिरिचुअल लेवल पे दिस इज़ प्रोबेबली द हार्डेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अपने आप को पहचानना और अपनी फ्लॉज को कन्फ्रंट करना, और अपने आप को कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करना। आई फाउंड समवन जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। तो इसी तरह की हमारी जो गेस्ट हैं आज, उनका नाम है इरम सईद। शी इज़ समवन जिन्होंने बहुत लोगों की इसी तरह गाइड किया है, उनको टीच किया है। और मैं उनको वैसे उनको लाइफ कोच कहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक टीचर, शी इज़ अ टीचर। इनका ये एक अप्रोच, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं वो। उसमें वो अपने काम में इस्लाम के बारे में काफ़ी नॉलेज रखती हैं, और उसको वो काफ़ी कनेक्ट करती हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसको अप्लाई करते हैं थ्रू द लेंस ऑफ इस्लाम एज वेल। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। So I am really excited that you are here with me today, and I think that what we need more of is कि हमें we need more teachers, we need more people, and I find it that हम लोग हमारी ज़िंदगी में कई दफ़ा वो रोल कोई बड़ा कर देता है, कोई कई दफ़ा आपका कोई फ्रेंड कर देता है कि या कोई someone who's older, your nani, someone can, they can share their wisdom with you, and it really changes things for you, and we need more of that. We need to learn from each other. And आपकी बातें सुन के मुझे लगता है कि that is kind of the journey that you are choosing to teach other women more about introspection and how to figure themselves out. First of all, thank you so much for having me, Nariman. It's awesome to meet you, although we should have met years and years ago, but हमें मौका नहीं मिला। लेकिन जो आप बात कह रही हो वो सही है to a certain extent. I never chose really, I didn't start out on this path thinking I'm going to be a teacher. I started out by basically just living my life, fighting my battles. And वो कुछ इत्तफाकन ऐसा हुआ कि I ended up becoming a coach as well. But that's not how I really started out. That wasn't part of the plan. और दूसरी बात जो आपने कही, I think that's also very important, that we do need role models, if you will. And in a way, I think permission is what I would say. Somebody who embodies what you actually secretly desire to be. And if somebody has already done it, they embody it in a way that kind of gives you that permission to be that as well. Even though we don't need permission, but in a way we do. So for me, I remember, when I was desperately unhappy in my marriage, and I was just in my 20s at that time, and I used to wonder, उस वक्त ये लगता था जिंदगी खत्म हो गई अब तो, this is it, I have a daughter, and is it even possible to pursue your dreams? Is it even possible for a woman? I lived in Texas at that time. I was perhaps 28, 29. I remember I was one day watching the life story of Madeleine Albright. And whether you like her politics or not, that's besides the point. I don't think anybody can argue that she accomplished a lot and she was a powerful woman to be reckoned with. And I was watching her life story and I was shocked to find out that she too had been basically a homemaker and a socialite. And she was really good at throwing parties for her husband, who was the powerful man. And she used to just throw very good parties. And that was the only skill she thought she had when she got divorced. And she used that and eventually became, Secretary of State and all of that stuff. That, I can't tell you how much that impacted me. And then one day I also heard about Martha Stewart's life story, another similar story, right? And it gave me so much inspiration that here are two women who were told, you can't really amount to much. The only thing you've got going for you is your skill as homemaker. And yet they took that and turned it into something.
And both Hmm. women are powerful women, and both women lived lives that, whether you agree with what they did or not, and all of that, nobody's perfect. Everybody's going to make all kinds of mistakes, but they were sort of like permission that I needed. आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग परमिशन का जो आइडिया है ना, बिकॉज ये एक बहुत कोर इशू है जो है अच्छी बच्ची सिंड्रोम। एंड आई थिंक यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, कि ये हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम अच्छी बच्ची, गुड गर्ल इज ये, और ये आई थिंक वेस्टर्न कल्चर्स में भी ये इट्स नॉट आपको पता है ये टर्म भी मैंने कॉइन की थी, अच्छी बच्ची सिंड्रोम. अच्छा रियली? It became very popular. Yeah, अच्छी बच्ची syndrome. हाँ नहीं बिल्कुल, दैट आई थिंक दैट यू आर रियली टचिंग ऑन ये जो आप, बिकॉज आपने जो मैं आपकी देखे हैं वीडियोस, उसमें आप कल्चर के साथ रेजिस्टेंस पैदा कर रही हैं, बिकॉज हमारा कल्चर हमें एक डिफरेंट किस्म का पैकेज बनाता है, और आई सी के यूर पिकिंग ऑन दैट। तो ये क्यों है, हम लोग ऐसे क्यों हैं? There are many very beautiful things about our culture. अब आप तो चूंकि मेरी फैमिली को भी जानती हो, आपको पता है बहुत सी चीज़ों में I strictly adhere to our culture because it's so beautiful. हमारे यहाँ जिस तरह से बड़ों की इज्जत और एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी मोहब्बत प्यार, वो सब कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स इन आवर कल्चर। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं जो कि ना सिर्फ ये कि फरसुदा हैं और दकियानूसी हो चुकी हैं, बल्कि वो बिल्कुल ऑप्रेसिव हैं और उनको होना ही नहीं चाहिए था हमारे कल्चर में। ना उनका इस्लाम से ताल्लुक है, हर चीज़ को इस्लाम से जोड़ देते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट। सो उसके खिलाफ यस आई रेज माई वॉइस, और मैं कई दफ़ा बहुत जिसको कहते हैं ना, आई रफल फेदर्स एज वेल, कई दफ़ा जानबूझ के करती हूँ, कई दफ़ा मुझे पता ही नहीं चलता और फेदर्स रफल हो जाते हैं। क्योंकि देखिए इसके पीछे एक पर्पस होता है, जब तक आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे आप सोचेंगे। सो मेरी जो जब लोग मुझसे पूछते हैं आपका पर्पस क्या है इन वीडियोस बनाने का, क्योंकि वो मुझे किसी बॉक्स में फिट करने की कोशिश करते हैं, मैं उसमें बॉक्स में फिट नहीं आती। मुझे फेमिनिस्ट बॉक्स में फिट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो मुझे, जो फेमिनिस्ट हैं वो कहती हैं नहीं ये तो बड़ी कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनलिस्ट है। जो ट्रेडिशनलिस्ट है वो मुझे फुटबॉल की तरह दूसरी तरफ फेंकते हैं। सो I can see that. and purposely I am my own person, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है। I don't want to fit into anybody's box and I hate fitting into boxes, क्योंकि बॉक्स किसी और की expectations का बना हुआ है। मैं क्यों किसी और की expectations पे अपनी जिंदगी गुजारूं। सो हम सब के साथ ही होता है, हमें बचपन में कुछ चीजें हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं, कुछ चीजें हमें दे दी जाती हैं कि यू आर दिस, राइट, यू आर ए मशरकी लड़की। नाउ दैट मशरकी गर्ल, उसके साथ बहुत सी चीजें खुद ही खुद अटैच्ड होंगी, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट। वो हम ना चूज करते हैं ना मांगते हैं, वो हमें दे दी जाती है, और जब हम उसके साथ ही पलते बढ़ते हैं, जवान होते हैं, हम समझते हैं बस यही है, बट एक्चुअली इट्स नॉट। किसने कहा है कि यही है? सेज हु? उस चीज को क्वेश्चन करें, और जब आप क्वेश्चन करते हैं और फिर आप उस क्वेश्चनिंग के थ्रू, कई दफा गलत आंसर्स आपको शुरू में मिलेंगे, दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज योर क्वेस्ट इज टू फाइंड द ट्रूथ। आप सच की तगोदौ में लगे रहें, इवेंचुअली आपको सच जरूर मिलता है। वो जो लाइफ होती है वो अब आपकी अपनी मर्जी की, आपकी अपनी चॉइस से बनी है। आपने अपनी आइडेंटिटी में वो चीजें आप बिल्कुल आसानी से डिस्कार्ड कर सकते हैं जो आपको नहीं सूट करती, जो आपको पसंद नहीं है। और वो चीजें जो आपको पसंद है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कल्चर की कुछ चीजें मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं, वो चीजें आप रख लें, और ये एक्चुअली सुन्नत है हजरत इब्राहिम की। क्वेश्चनिंग व्हाट योर फोर फादर्स आर गिविंग यू, questioning that, and then arriving at the truth yourself. Yeah. ये हमारे कल्चर में अब एक रिवायत बन चुकी है कि क्वेश्चन नहीं करना। जैसे कहते हैं ना, डाउट इज essential to faith. It is the same thing. The question is important because how else will you believe? I agree. और मैंने अपनी स्टोरी बहुत ओपनली शेयर की हुई है कि मैं जब, क्योंकि I was raised in a very very conservative household, मेरी अम्मी अल हुदा के फाउंडिंग मेंबर्स में से थी, तो मैंने बहुत यंग एज में रिटेलिएट किया बिकॉज मेरे क्वेश्चंस नहीं आंसर होते थे। I found Islam to be very oppressive and unfair to women. It was very clear, no matter how much sugarcoating they did, कि आप मर्द को ऊपर का दर्जा दे रहे हैं, औरत को आप कमतर समझ रहे हैं। नाकुसुल अकल कहा जाता था, और मैं ये कहती थी कि हर क्लास में टॉप मैं करती हूँ,
लड़कों को बीट मैं करती हूँ, फर्स्ट मैं आती हूँ हर चीज में, तो नाकसुल अकल कैसे हो गई? आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, मैंने प्री मेडिकल किया हुआ है, हर चीज मुझे प्रूफ चाहिए होता था, एविडेंस क्या है इसका, रियलिटी इन कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, तो मैं क्यों फिर एक्सेप्ट करूं? तो मुझे बस ये कह दिया जाता था अल्लाह की यही मर्जी है, जाओ जाके अल्लाह से लड़ना। मैंने कहा तो मरने का क्यों इंतजार हाँ, करूं, ये मैं बात अभी मैंने लड़। सुनी है, जाके अल्लाह से लड़ना है। सो मैंने 18 इयर्स की एज में जब ईमान डिक्लेयर किया था अल्लाह को कि आई हेट यू, आई विल नेवर लव यू। मैं सीक्रेटली इस्लाम भी छोड़ चुकी हुई थी, अम्मी ओह अब्बू, वाह। अम्मी का खास तौर पे, तो मैंने कहा नहीं था ओपनली, लेकिन मैंने दिली डायरेक्ट उसको एड्रेस करके कहा आई हेट यू एंड आई विल नेवर लव यू। ये पता था कि कोई ना कोई ताकत है, खुदा है, ये बात समझ में आ गई हुई थी, बट मुझे वो एक बहुत ही नार्सिसिस्टिक और ओप्रेसिव गॉड लगता था। मेरे इतने क्वेश्चंस थे कुरान अनफेयर। और मेरे क्वेश्चंस आंसर नहीं होते थे, सो मैंने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, जो कि आजकल की बहुत सी यंग बच्चे कर रहे हैं। एंड इट वाज मच लेटर थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ माय ओन लाइफ, जब जिंदगी में धक्के खाने पड़े और उस वक्त किसी ऊपर की ताकत का आपको जरूरत पड़ती है, और मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं थी बैक टुवर्ड्स इस्लाम। आई वेंट इनटू वेस्टर्न माइंड साइंसेस, मैंने वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में बहुत साल, I learned from some, I'm very, very fortunate. I learned some of the best teachers in the world. Consciousness Sikhi, the study of consciousness, self-development and emotional intelligence. अब चूंकि रोते धोते हुए उस टाइम पे अम्मी ने घसीट घसीट के मुझे दर्स पे लेके जाती थी, अलहुदा के दर्सों पे, तो मेरी एक्चुअल इंफॉर्मेशन मेरे पास काफी थी, एक्सपोजर मेरा बहुत था। तो आई डिड नॉट लाइक इस्लाम, इवन दो अल्लाह के साथ लड़ाई डिक्लेयर कर चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में एक बहुत ही डीप रिस्पेक्ट थी, बिकॉज आई हैड स्टडीड हिज लाइफ अ लॉट। जब भी किसी टीचर के बारे में पढ़ती थी और फिर आई वुड गेट फैसिनेटेड एंड आई वुड डीपली स्टडी अबाउट देम, no matter what I did, the excellence of emotional intelligence, the excellence of a developed personality, a balanced personality, no matter what I did, I could not find a better example than Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. I cannot deny the fact that this man was extremely extraordinary, that he must be a representative of the divine in one way or another. So he must be a prophet of God. He preached Islam. Maybe, just maybe, I don't have a good understanding of Islam, so maybe I should research it myself. Maybe by फिर then मैंने आपको कुरान, थोड़ा distance मिल गया था to really consider it from on your own terms. Islam is always going to consider equality, human rights, love, mercy, वो तमाम चीजें जो एक ethical personality में होनी चाहिए, ethics दी ही इस्लाम ने थी। जब आप उस लेंस से कुरान को अप्रोच करते हैं, तो फिर वो तमाम चीजें आपके सामने खुलना शुरू हो जाती हैं, और ये जो जो गिले थे तमाम के तमाम वो धुल गए, साफ हो गए। इक्वालिटी की बात समझ में आ गई, बहुत सी और बातें समझ में आई कि हाईजैक हुआ हुआ है हमारा दीन, इसकी बहुत ज्यादा डिलिबरेटली और कुछ मिस्टेकनली गलत इंटरप्रिटेशंस हुई हैं, डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच। बट वही है कि अपनी रिसर्च, अपना एक डायरेक्ट कनेक्शन ढूंढना, इट चेंजेस एवरीथिंग। बिल्कुल, और फिर आपका जो फेथ बनता है उससे आपको कोई आके शेक नहीं कर सकता, क्योंकि आपने खुद डिनाई, व्हेन यू आर सीकिंग द ट्रूथ, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन is necessary. You will arrive at different conclusions and then you will say, नहीं ये नहीं सही, नहीं, you put it to test. That is what Hazrat Ibrahim did. पहले उन्होंने कहा शायद सूरज मेरा खुदा है, शायद चांद मेरा। It was not a one day process and he arrived at, okay, मुझे मिल गया अल्लाह। No, मेहनत करनी पड़ती है, आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू अपनी अकल को यूज करके गुजरते हैं, और फिर जब आप सच को पाते हैं, उस सच से फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। दैट इज वाई हजरत इब्राहिम बेफिक्री के साथ कूद गए, आग में कूद गए, क्या क्या उनकी स्टोरीज है अबाउट फेथ, वो जो ईमान उनका इतना पक्का था। एंड इट्स सो सैड ईमान के हमारे बेसिकली रूहानी बाप हैं वो, हमारी उम्मत के, एंड उन्हीं की सुन्नत हमें फॉलो नहीं करने दी जाती। I think the things that I've in the past few years, जब से मैंने खुद भी इसको consciously अपने आप को educate करने के लिए I started reading the Quran and everything, there's so many questions, there's so many things actually जो मुझे अब समझ आ रही हैं. For example, like the idea of shirk, जो आपकी भी मैं एक बात सुन रही थी कि जहाँ आप कह रही थी कि हमने
अपना काबा बना दिया है, मुख्तलिफ मतलब हमने रिलेशनशिप्स में भी जैसे आप बना लेते हैं काबा, एक दूसरे का काबा बना दिया एक तरह से। तो वो वाली बात कि इट आई थिंक शिर्क को हम हमेशा समझते रहे कि ओके हाँ शिर्क मीन्स के बस एसोसिएटिंग अनदर गॉड, बट द आइडिया जो हम आइडल वर्शिप हमारी एक अपनी एक और किस्म जो प्रैक्टिकली है, आइडियाज़ की, चाहे आइडियाज़ की, इंसानों की, पॉलिटिक्स की, जो भी है, उसमें हम जो भूल जाते हैं कि हमारा मॉरल ग्राउंड क्या है, जो हमारा एथिकल, हमारा मतलब जो हमारा फेथ है, ये जो भी, वही वी गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दीज थिंग्स, और आई फील लाइक दैट इज, वो भी शिर्क के उसमें रेंज में आ जाता है, मे बी अ स्पेक्ट्रम ऑफ शिर्क दैट, जिसको हम कह सकते हैं। कभी कभार मैं ऐसे ही बहुत जब जज्बे में होती हूँ तो मैं एक शायरी लिख लेती हूँ। ये उनको ना सुनाना, नीलम खाला को ना सुनाना क्योंकि उसमें कोई वजन काफिया रदीफ मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं अपनी एक जज्बे में चीज लिख देती हूँ। उरिया हुए, उर्दू सही आती है, सही समझ में आती है? मेरा ख्याल है उरिया हुए आज कसर के बुत तमाम, उरिया हुए आज कसर के बुत तमाम, दिले फिरौन मेरा जूं ही बेलिबास हुआ। सो मीनिंग के उरिया का मतलब के नेकेड हो गए, राइट? सो मेरे इस कसर, इस महल में कितने बुत थे वो तमाम नंगे हो गए। जैसे ही मेरा जो फिरौन दिल है वो उस वो मेरे मुझे नजर आया, जैसे ही वो बेलिबास, उसके ऊपर जो लेयर्स थे, कि हमारा जो दिल है, दरअसल फिरौन ने क्या कहा था, मैं खुदा हूं। हमारे दिल में ख्वाहिशात होती हैं, नफसानी ख्वाहिशात, हम उनके इतने बुत बना के बैठे होते हैं और वो हमने छुपाए होते हैं। और वो जब दिल को हमने एक्चुअली, हमने अपने नफ्स को जब देखा कि ये कितना बेरहम हर वक्त ख्वाहिशात करता रहता है, तो मुझे समझ आया कि मैं तो एक्चुअली इस महल में तो बुत ही बुत है, अल्लाह कहाँ है? देयर इज नो अल्लाह, देयर इज जस्ट बुत ही बुत है। मेरा ये ख्याल था, देखें कि जो, अगर तो ये डिवाइन रिलीजन है, इफ इट इज फ्रॉम द डिवाइन, then it must by default ease my life on planet earth। हम दीन को सिर्फ बना के बैठे होते हैं कि ये मौत के बाद काम आएगा जन्नत दोज़ख का डिसीजन में। No, but if it's divine religion, then it must ease this human experience that I'm going through. It's very very hard. It's a very tough experience. अल्लाह खुद कहता है कि बहुत मुश्किल experience है। तो फिर अल्लाह के उस पे चलने से मेरी जिंदगी में कोई फायदा आना चाहिए, कोई आसानी आनी चाहिए। These concepts of tawheed, taqwa, tawakkul, tashakkur, I have taught this, like I said, to non-Muslims, to Americans, how to use these as your mindset, which creates a sense of peace. It absolutely eradicates misery from your life. देखिए, why are we miserable? We become miserable not because of the hardships we face. Okay, pain, I always tell my students, pain is inevitable. Misery is a choice. Okay, that's a choice. So I went through some painful experiences. I have gone through 2 abusive marriages, 2 divorces. ये वो बहुत सी चीजें. Honestly, today I am so grateful for those experiences. I bless my exes. I have zero resentment towards them. I pray for them when they are going through a hard time. मैं कोई ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई बहुत अच्छी हूँ. मैं आपको सचमुच में बता रही हूँ कि मेरे दिल में कोई भी रिजेंटमेंट का, उसका कोई बोझ रहा ही नहीं है. Now, many people have an experience which happened 10, 15, 20, 30, 40 years ago, and they still relive it. They're miserable because of it. We are miserable when we are in contradiction to reality. When we say, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए. In conflict with reality, which is ground reality, ये हो रहा है. Faster we can accept कि ये हो रहा है. Stop fighting कि ये नहीं होना चाहिए. ये हो रहा है. And from here, where do we go? What can we do? As long as you keep fighting कि नहीं होना चाहिए, you are staying in the past. You're not in the present moment. The only power you have is in this moment. अब ये हमें तकवा, तवक्कल, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करो. अल्लाह loves me. He is more powerful than my problem. हम जब अल्लाह अकबर कहते हैं, वो सबसे बड़ा है. वो चाहे तो ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हो जाएगी. अगर वो सॉल्व नहीं हो रही है तो इसमें मेरी कोई बेहतरी है. So I must look for good in this, and then I will be out of this, right? अल्लाह ने मुझे कह दिया है कुरान में, मुझे जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे. तो मैं कोई बेवकूफ हूं कि मैं
जाके उसको कहार जब्बार, मैंने नहीं यार, ठीक मुझे मालूम है वो कहार भी है जब्बार भी है, औरों के लिए, मेरे लिए नहीं है। दिस इज माई फेथ। मुझे भी कभी आई नेवर एसोसिएटेड फियर विद मुझे पता नहीं अब मेरे भी पेरेंट्स नहीं शायद मतलब आई नेवर सीन दैट कि मुझे वो क्योंकि इवन नाउ दैट आई मेरे बच्चे हैं तो मैं अब उनको सिखा रही हूँ मैंने चूज किया कि मैं खुद इनको सिखाऊं इस्लाम विच इज वेरी स्केरी वेरी स्केरी बेगम वाली जो आपने बात की है, जी सबसे पहली बात तो ये कि आई फाइंड कुछ गम जो है वो बहुत ही खूबसूरत भी होते हैं। जिंदगी खूबसूरत ना रहे अगर गम ना हो, गम हमारी, you know how do you how is a beautiful painting made where if it was just all white and pink and the contrast is what makes a masterpiece. How does the painter, how does the master use the contrast and the colors and all of that? हम भी एक मास्टरपीस है, ईच ऑफ अस एक पेंटिंग है, और उसको पेंट करने वाला वो मास्टर है। अब कहीं कई जगहों पे वो कॉन्ट्रास्ट के लिए डार्कनेस को भी यूज करता है, कई जगहों पे ब्राइट कलर्स आएंगे। गम एक इंतहाई खूबसूरत चीज है। गम से निजात किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। बेगम जो आप कहती हैं, then in my mind that can be an art of how to go through gum, right? Accepting that it's a necessary part of life, but it doesn't have to be a permanent part of life. मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दूं। मेरी तमाम लर्निंग कोचिंग एक तरफ, और मेरी प्यारी मरहूम मोमानी, आपकी खाला सुंबल आंटी, what she demonstrated for me, मैं 2019 में शेरी की वफात के बाद, अल्लाह ताला दोनों के दर्जात बुलंद करे, I was so devastated that I moved back to Pakistan and I ended up staying for 4 or 5 years because COVID हो गया। लेकिन शेरी की वफात के बाद मुझे इतना जोर का झटका लगा था कि मेरी अम्मी को फौत हुए भी ज्यादा देर नहीं हुई थी, एंड कि यार इतने प्यारे लोग जा रहे हैं और हम इतनी दूर जाके बैठे हुए हैं। आई हैड नॉट प्रोसेस द ग्रीफ ऑफ माई मदर्स डेथ। एंड सुंबल आंटी, ऑफ कोर्स शेरी की वफात को अभी साल भी नहीं हुआ था। She was the mother that I was yearning for, and I was this child who needed a mother, that she was kind of, she needed to give love to, जो उनका अपना बेटा चला गया था। सो मेरा और सुंबल आंटी का बहुत ही क्लोज बॉन्ड बन गया था उस टाइम में। बहुत, वो गुड़िया को कहा करती थी कि अच्छा चल फोन बंद कर, अब मेरी दूसरी बेटी आ गई है। और मैं इतनी हैरान होती थी सुंबल आंटी को देख के, बिकॉज सुंबल आंटी, आपको पता है, चिड़िया जितना उनका दिल था, बहुत नाजुक दिल, छोटे दिल की, किसी की जरा सी चीज पे डर जाती थी, किसी के दुख में इतनी दुखी हो जाती थी कि 2-3 दिन बेड से नहीं उठ पा रही हैं। और शेरी जिसमें उनकी जान थी, उनका बच्चा जवानी अचानक फौत हो गया। मुझे तो लगता था सुंबल आंटी नहीं सरवाइव करेंगी, देर इज नो वे, या वो कुछ हो जाएगा उनको, या वो पागल कुछ हो जाएगा उनको। आई वॉज सो शॉक्ड नरीमान के कई दफा सुंबल, और डेली शेरी का जिक्र भी होता था, डेली उसकी कब्र पे भी जाती थी, डेली उसको पढ़ के भी पढ़ती थी, उसके नाम पे रोती भी थी। बट मुझे कितनी दफा उन्होंने ये बात कही कि इरम, मुझे तुम ये ना समझना कि मैं जिंदगी से कट गई हूं, या मैं मर गई हूं, या मैं अल्लाह की नाशुक्री हूं। I was just shocked कि ये सुंबल आंटी कह रही हैं कि मेरे बेटे का जो दुख है वो मुझे सारी उम्र नहीं भूलेगा, लेकिन मैं खुश हूं, हम खुश हैं। एंड दैट इट हैड ओनली बिन 1 year, एंड आई वॉज शॉक्ड कि सुंबल आंटी जैसा इंसान जो इतने छोटे दिल का, इतने नाजुक दिल का था, हाउ इज एबल टू डू दैट। एंड आई वुड आस्क हर, क्योंकि मुझे वो डांटती थी कि तुम्हारी अम्मी को फौत हुए इतने साल हो गए, तुम क्यों डिप्रेस्ड हो, तुम क्यों इस तरह, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। That was a very important lesson, that surrender, it is one of the hardest things to do. When you absolutely surrender to God, basically you're surrendering to what is, you are accepting what is। जब मेरे अम्मी फौत हो रही थी तो मैंने अब्बू से भी तब पूछा था, बिकॉज मैंने अपनी जिंदगी में अगर आइडियलाइज किया है किसी को, in most things, especially when it comes to tawakkul, it's my father। सबर एंड तवक्कल, अमेजिंग, माशाल्लाह से उनका तवक्कल है। सो आई वेंट टू माई डैड, आई वॉज लाइक 42-43 की थी तब, एंड आई सेड, अब्बू, अम्मी हैड बिन, शी वॉज डाइंग ऑफ कैंसर, प्रोग्नोसिस उनका यही था कि इट वुड बी मैक्सिमम 6 months, बट शी डिडंट इवन लिव फॉर 2 months। तो आई हैड
fought a lot of battles by then, and won. I had accomplished a lot. मुझे फाइट करना आता था रियलिटी से, यानी हार्डशिप से फाइट करना आता था. बट इस केस में who was I going to fight? There was, she was diagnosed with terminal cancer. So I went to my dad and I said, Abu, I don't know how to deal with this. I'm unable to process this because how do I fight with this? He said, You can. I said, I know I can. So he said, Sabar karo. And I said, I'm realizing मुझे नहीं आता सबर करना. सबर कैसे करते हैं? Because लोग कह देते हैं सबर करो. But how do you do sabar? Especially for someone like me who had become a fighter. How do you do sabar? Dad took a deep breath and he said, अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ. अल्लाह के आगे सरेंडर कर दो. जब तुम सरेंडर करोगी, क्योंकि सबर खास तौर पे इस तरह की चीज में आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते. इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. When you surrender to God's will, then He will give you sabr as a gift. Took me a few years to learn that lesson. कि जितनी जल्दी हो सके हम आउट ऑफ फियर सरेंडर नहीं करते, कि दुआ मांगते हुए भी डरते हैं. मैं आपसे एक और चीज शेयर करूं बेटा, के when COVID happened, so when my mother died it was 2015. 2019 तक मुझे 4 साल लगे सबर की टेक्निक डेवलप करने में, क्योंकि आसान नहीं है, सरेंडर करना आसान नहीं है, खास तौर पे जब इतनी कीमती चीज की आप बात कर रहे हो. मेरी जो बड़ी बेटी है उसको हम छेड़ते हैं कि जो डिजाइनर बग है ना वो इसको हो जाता है. She had typhoid, she had dengue, and I was really scared. In the beginning of COVID, if you remember, young people were dying. So मैं एक दिन इसको बुखार हुआ, we got her checked, and I was really really scared कि कहीं इसका कोविड पॉजिटिव ना निकले, because उस वक्त सिर्फ हम डेथ्स का सुन रहे थे. तो वैक्सीन नहीं थी. वैक्सीन भी नहीं थी, और उस वक्त शुरू में यंग नया कोविड होता था तो उनकी डेथ्स बहुत हो रही थी. मिडिल एज्ड एंड ओल्डर पीपल वर सर्वाइविंग. पाकिस्तान में खास तौर पे कुछ बहुत दर्दनाक डेथ्स हुई थी अचानक यंग बच्चों की 20s में. सो नताशा इज ऑल्सो इन हर 20s. सो जब आया रिजल्ट तो शी वॉज कोविड पॉजिटिव, और मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई. सो व्हाट आई डिड, आई वेंट इनटू सजदा, because by that time I had been practicing surrender. I went into sajda, और मैंने यकीन करो कांपते हुए I faced my biggest fear and I said, oh my God, my daughter, my firstborn, दोनों बेटियां मेरी जिंदगी हैं, everything I do is for them. And और वो कहना भी, वो थॉट भी अपने दिमाग में लाना इतना मुश्किल था. इट वाज सो पेनफुल, बट आई फोर्स्ड माई सेल्फ इन सजदा. आई cried and I said, या अल्लाह, तेरी दी हुई औलाद है, तू जानता है मुझे कितनी प्यारी है, बट ये तेरी है, मेरी नहीं है. अगर अब तेरी मर्जी है, अगर तूने मेरी किस्मत में ये लिख दिया है और तेरी ये मर्जी है कि तू उसको वापस लेगा, तो फिर मुझे अपने शुक्रगुजार बंदों में से पाएगा, और मुझे हिम्मत और हौसला दे कि मैं तेरी विल के ऊपर सरेंडर कर दूं. अगर ये तेरी मर्जी है तो मेरी मर्जी भी यही होगी. हिम्मत और हौसला मुझे दे, लेकिन मैं माँ होने के नाते तुझसे बेग करती हूँ कि मुझे इस इम्तिहान से ना गुजारी. लेकिन अगर यही है मेरी किस्मत में, एंड बिलीव मी व्हाट हैपेंड, मेरे दिल में उसी वक्त जो दिल मेरा ऐसे थर थर कांप रहा था, वो इमीडिएटली उसमें सुकून आ गया. ऐसे ही बस सुकून आ गया. And then I faced, I went upstairs to tell my daughter, क्योंकि उसको अगर मैं इस हालत में जाके बताती तो वो वैसे ही बेचारी, वो खुद बहुत डर जाती बेचारी. और बड़ी हिम्मत और हौसले से we did everything we were supposed to do. माशाल्लाह ठीक ठाक है. But I faced it, and here's the thing why I shared this. अल्लाह के आगे सरेंडर अगर मैं ना करती तो क्या कुछ चेंज हो जाता? अगर मैं ये ना कहती, फर्ज करें जो मैंने कहा, या अल्लाह, मैं ये तेरी दी हुई चीज है, तुझे वापस तेरी है, तो अगर मैं ये ना दूं तो क्या अल्लाह कहेगा कि अच्छा मेरा इख्तियार नहीं है इसके ऊपर? आई मीन थिंक अबाउट इट. वी मेक ऑल दीज वियर्ड काइंड ऑफ नोशंस इन आवर हेड. वही इख्तियार है, वही मालिक है, उसी की मर्जी चलेगी, सब कुछ वही होगा. अगर आप उसके आगे कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर दें, क्योंकि हैं ही हम सरेंडर्ड ना, हमारी तो कोई है ही नहीं, तो अगर आप कंप्लीटली उसके आगे वो, और फिर आप उस प्लेस से भीख मांगें जिस तरह मैंने मांगी कि या अल्लाह इस आजमाइश से ना गुजारी. वो जो आपने कहा था ना,
आपके शेर में कि आई डोंट नो फिरौन दिल की बात की थी। दिल फिरौन मेरा जो बेलिबास हुआ, या बिल्कुल, तो दिस इज बेसिकली गॉड कॉम्प्लेक्स। ये हमारे सब God complex. We have so many layers. इसीलिए मैंने बेलिबास कहा, क्योंकि हम लिबास के ऊपर लिबास पहन लेते हैं, और अगर उसको completely नंगा करो तो वो कमबख्त एक फिरौन है। हम अपने आप को बहुत पावरलेस और हेल्पलेस समझ रहे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते कि हमने किन चीजों को पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है। आपने बहुत खूबसूरत बात कही नरीमान। हम जब पावरलेस और हेल्पलेस फील करते हैं और अंदर ही अंदर हम सीक्रेटली बहुत कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं, बट द फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड पावरलेसनेस creates deep anger, resentment, rage in us. If we face the facts that I am actually only powerless and helpless in front of Him who is the ultimate, supreme, and powerful being. वो जो कहते हैं ना, इकबाल ने कहा वो एक सजदा जो तुझे देता है हजार सजदों से निजात, सॉरी इफ आई बुचर्ड इट, बट जब उसके आगे हम एक्नॉलेज कर लेते हैं कि आई एम अ स्लेव टू यू, आई एम हैप्पी एंड विलिंग टू बी योर स्लेव, आई एम योर लविंग, मेरी सबसे ब्यूटीफुल चीज अब मुझे यही लगती है कि मैं उसकी गुलाम हूं, मुझे उसकी गुलामी बहुत पसंद है। हालांकि मैं इंडिपेंडेंस के लिए सारी उम्र मैंने फाइट की है, बट उसकी गुलामी में इतनी ज्यादा फ्रीडम है, लिबरेशन है एक्चुअली। So then you become very free and you're like, I don't care about this butt of the culture, which is such a harsh butt, नरीमान। सबसे ज्यादा जालिम बुत कल्चर का बुत है। मुझे उससे भी निजात मिल गई। मैंने सुन्नत इब्राहिमी पे चल के ये तमाम बुत एक एक करके तोड़ दिए कि ये बुत तो हमने बनाए हैं, इनके अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है। इफ आई डोंट गिव देम पावर, दे आर पावरलेस। वही जो अब हम बात कर रहे होते हैं, लोग क्या कहेंगे। हाँ, अगर मैं अपने बाल छोटे कर लूंगी तो लोग क्या कहेंगे। मतलब इट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट थिंग कि रिश्ता इधर हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। Will people like me? Will people love me? Am I pretty enough? Am I good enough? Am I young enough? Am I old enough? Am I wise enough? Am I stupid, innocent enough? I mean, so many standards. But जिसने आपको बनाया है, कभी उसके बारे में सोचें कि are you enough for him? Well, here's a news flash. Yes, you are. Yes, you are enough for him right now. Stop judging yourself. Stop waiting for you to be perfect as a Muslim, as a woman, as a man, as whatever. Stop waiting to be perfect, because that's also your Firaun telling you, hey, if you do this much, you're going to be perfect. No, you're never going to be perfect. You are not made to be perfect. मैंने भी दिस हैज बीन अ मेजर की कॉन्सेप्ट फॉर माई सेल्फ। मैंने अब जो इट रियली ब्रोक me free, it gave me freedom to say that I am pretty stupid. I am not as sensible as I thought I was. My dear, I celebrate my stupidity. भी आपके सामने मैंने कितने minutes आया किए, ना मैंने कैमरा सेट किया हुआ था, ना माइक सेट किया हुआ था। I am an extremely respectful person. I actually am not comfortable being called a teacher. मेरी जो students जो long term coaching उनके सामने they know very well. I don't allow anybody to call me teacher. They call me Iram. मैंने उनको पहली चीज ये कही थी, मुझे पेडिस्टल पे कभी ना बिठाना बेटा, कभी भी, बिकॉज ये हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस्ताद, उस्ताजा, शेखा, ओह माय गुडनेस, बिकॉज हमें आदत है कि हम पेडिस्टल पे बिठाते हैं, फिर हम उनको परफेक्ट करते हैं, फिर हम यस यस करते हैं। कब कहा था? We're supposed to question our teachers, you know? So I find that thing of perfection, मुझे जो मर्जी कह ले, मैं उनको रिमाइंड भी कराती रहती हूँ। मैं अपना हुलिया भी नहीं चेंज करती। यार, what do you, जब मुझे लोग जब कहते थे आप कैसे इस्लाम की बात कर सकती हैं, मैंने कहा, so what do you see? You see an imperfect Muslim woman other than Nabi सल्लम और उनके अहले बैत? No, I'm sorry, नहीं बन सकता कोई भी परफेक्ट, हर एक में होंगी फॉल्ट्स। और ये बात है, अगर आप परफेक्ट होते तो आप फरिश्ते होते, आप नहीं है। तो ये भी पूछना चाह रही थी कि हाउ डू यू लुक एट being successful now, like at this stage as opposed to when you were younger? The number one is peace of mind, Nariman. सबसे ज्यादा important मेरे लिए वो है। Do I have peace of mind? Do I have peace in my heart? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि currently I am not running the Iram Saeed coaching brand,
because अच्छा. I'm busy. मेरे और भी, I've had these businesses in America for almost 15 years जो मेरे इरम सईद ब्रांड से पहले के हैं. And they needed my attention because 2-3 साल जो मैं वो वाली कोचिंग ब्रांड को चला रही थी इरम सईद के, तो my business started to suffer. So I had to step back and take care of things. सोशल मीडिया के ऊपर बहुत, पाकिस्तान में यार सोशल मीडिया वैसे ही बहुत गंदा है, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ और भी ज्यादा है. एंड क्लिक बेट एंड दिस एंड दैट, एंड तो वो तैयार होके कपड़े पहन के वीडियो ना बनवाऊं तो वो क्लिक्स नहीं आ रहे. इतनी वो खप थी. एंड आई वाज लाइक, ओके, दिस इज जस्ट टू मच and I'm not enjoying it anymore. I enjoy doing stuff like this, talking to you, doing a podcast, answering questions. I love that. But I did not enjoy that stuff. And मेरा motto है अब जिंदगी का, if I'm not enjoying something, I don't do it. मुझे पैसा बनाना, I enjoy it. It's a game to me. It comes easy to me. अल्लाह का बड़ा करम है. But if I don't enjoy it, I will not do it. जो मर्जी हो जाए. That's also, by the way, one of the keys to money manifestation is passion. If you're not passionate about it, it will never take you to that level. So, okay, अगर अभी मैं नहीं enjoy करी तो I will stop it. However, मेरी जो courses हैं, because they have alhamdulillah changed so many lives. My 30 days to transformation course has a 98% success rate. मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ. मैंने किसी और अपने फ्रेंड्स में से कोचेस का मैंने ये सक्सेस रेट नहीं देखा. 30 days to transformation combined the essence of what I have learned in mind sciences through my Western teachers and these Islamic concepts, आप सूफीज्म के concepts कह सकती हैं, और उनको मैंने combine करके वो कोर्स बनाया था. So मैंने कहा यार, और वो at one point it was selling for $1,000, for $750, $500. लोगों ने बहुत पैसे भी खर्च किए. And on a whim I said, you know what, I'll make all my courses free. मेरी उसके ऊपर बना के just make all my courses free. बहुत से लोग नाराज भी हुए. मैंने कहा आप why are you stuck in that कि I paid for it and other people are getting free. आपको फायदा हुआ, उनका बहुत ज्यादा फायदा हुआ. मैंने कहा तो फिर be happy for the blessing that those people are getting, और अल्लाह से दुआ करें कि आपको भी मजीद blessings दे. So anyway, फिलहाल I don't know when I will, how long I will keep it, maybe forever, but all of my courses are for free. And if I can let people know how to go there and get it, just go to iramsaeed.com, ERAMSAED.com. Just put your name and email address and make an account, and it will open up all the courses. The main thing is कि आप, at least it's a step towards, I mean, if somebody is thinking about this, it's a step towards discovering yourself and your truth. And अपने आप को मतलब क्वेश्चन 30 days to transformation तो आपकी जिंदगी को चेंज कर देता है. 30 days के अंदर अंदर आप चेंज हो जाएंगे. ये बहुत बड़ा क्लेम है, मुझे मालूम है, बट अगर हजारों लोगों ने मेरा कोर्स ना लिया होता और ये फीडबैक ना आई होती तो मैं ना कहती. और मैं कुछ बेच नहीं रही हूँ, सो करना है आप कर ले. आई नो. हाँ, मतलब वही, इट्स इफ यू आर थिंकिंग अबाउट रिस्क जो है, प्रॉस्पेरिटी जो है ना, वो एक फॉर्म में नहीं होती. पैसा एक फॉर्म है. दुआएं, ब्लेसिंग्स, इज्जत, ये सभी रिज़्क की फॉर्म्स हैं. ये भी रिज़्क की. सो मुझे प्रॉस्पेरिटी फिर भी मिल रही है और मैं उस लालच में कर रही हूँ. आपकी अभी भी मुझे इतनी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं, तो मुझे तो कीमत मिल रही है. अल्लाह ने जो आपको भेजना है वो आपको मिल रहा है. जिंदगी में मेरे कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई दफा ऐसे सॉल्व हो जाती हैं, पता नहीं चलता. वो मैं इतनी प्रेयरफुल नहीं हूँ. आई एम वन ऑफ दोज पीपल, नरीमान, जो बहुत गिल्टी फील करते हैं, फिर कहती हूँ नहीं, गिल्टी नहीं फील करना, अल्लाह तूने मुझे ऐसा ही बनाया है. आई एम नॉट अ वेरी प्रेयरफुल पर्सन. मैं बहुत ज्यादा वज़ाइफ, और बस मैं फर्ज पढ़ लूँ नमाज तो कमाल है वो भी, बस दैट्स इट. बट ये चीज मुझे पता है, ये एक वो कमीशन है सदका जारिया का, जिसमें मेरे जैसा लेजी बंदा जो है ना, वो जगह जगह प्रॉब्लम में आने से बच जाता है. हाँ, कोई दुआ देना भूल भी जाए, वो तो सब जानता है ना, उसके यहाँ डेबिट क्रेडिट सब चल रहा है अच्छी तरह से. सो ये मैंने अपनी जिंदगी का असूल बनाया हुआ है कि देयर हैज टू बी समथिंग that I do on an ongoing basis that is altruistic, where, I may not get anything in return, but it has to be done on a regular basis. So a lot of times I will maybe participate in a charity where, क्योंकि टाइम मैं अगर नहीं दे सकती तो नहीं दे सकती, लेकिन कुछ ना कुछ इंसानियत की भलाई जिसमें हो रही हो,
जिससे मुझे दुनियावी फायदे की उम्मीद नहीं है कि होगा हो नहीं होगा, इट्स ओके। आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज हम लोग हमारे कल्चर में माशाल्लाह सदका और ज़कात एंड दिस इज़ बहुत वेरी ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड और बहुत जनरस लोग हैं, लेकिन आई थिंक वी फॉरगेट ऑल्सो कि टू गिव ऑफ आवर सेल्व्स, यू नो, कि अपना अपना टाइम जो देना, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत देखा है, हम पाकिस्तान में तो इतना मैंने कॉमनली नहीं देखा, लेकिन हमें यहाँ पे जैसे बच्चों को स्कूल में कंपलसरी है कि आपने कम्युनिटी सर्विस करनी है, and I think it's a good value to teach your kids and to be all of and anyone can volunteer at any age. ये आपने जो बात कही है ना नरीमान, ये मेरा एक सबसे बड़ा गिला है विद स्कॉलर्स इन पाकिस्तान एंड इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। ये बहुत सेल्फिश किस्म का दीन सिखाते हैं, बहुत ही सेल्फिश, अपनी आखिरत, अपनी जन्नत, अपनी ये, अपनी वो, नमाजें पढ़ो, ये करो, लाइक आर इबादत बिकम सो सेल्फिश because it's all about jannat. And what about simply doing something for the sake of somebody because you want to help them? And उस चीज के लिए मैं, आपने, you know who Rabia Basri is? Have you heard of Rabia Basri? I encourage you to read about her. Natasha ने, मेरी बेटी ने एक दफा पढ़ा तो she's in love with Rabia Basri. She's her role model now. Amazing Sufi lady. She was a Sufi saint. कुछ करामात भी हैं उनके नाम से, ज्यादा हम सुनते नहीं है क्योंकि she was a woman, तो औरतों को तो जानबूझ के they have been written out of history. साउथ एशिया में थी, इंडिया में, पाकिस्तान? बसरा की थी राबिया बसरी। अच्छा, ओके। शी वॉज अ सूफी इन लव विद अल्लाह की आशिक थी। तो एक दफा राबिया बसरी जा रही थी तो एक हाथ में उनके जलते हुए कोयलों की अंगीठी थी और एक हाथ में पानी का लोटा था, और गुस्से में, बस वो बहुत जलाली थी वो। तो वो जा रही तो लोगों ने पूछा, राबिया किधर जा रही हो, किधर? कहती है, मैं इन कोयलों से मैं जन्नत को आग लगा दूंगी और इस लोटे से मैं दोजख की आग बुझाने जा रही। एंड पीपल लाइक व्हाट? शी गोज, इसलिए कि वो लोग जो नेकी, जो अल्लाह से प्यार नेकी करते हैं इस चीज में कि दोजख की आग से डरते हैं, तो मैं दोजख की आग को बुझाना चाहती हूँ, और जो लोग जन्नत की लालच में नेकियां करते हैं तो मैं जन्नत को आग लगा देना चाहती हूँ। बिकॉज वॉट शी बिलीव्ड वाज कि अल्लाह से प्यार, अल्लाह की इबादत करो क्योंकि अल्लाह से प्यार करते हो, अल्लाह के प्यार में सब कुछ करो, राइट? So we have a very transactional relationship with Allah Ta'ala. और मेरे 30 days to transformation course में that's one of the things you learn. Because हमारे अंदर शुरू से एक बड़ा डर बिठाया जाता है, एक बुढ़ा बाबा बैठा हुआ है, वही जो मैंने कहा था, एक नार्सिसिस्टिक सा बाबा जो आपको बस हर चीज पे बस फौरन पकड़ेगा, फौरन पकड़ेगा। We don't have a personal relationship with him, an intimate relationship with him. अगर आपकी कोई बहुत close friend है, कोई cousin है, कोई, आपको उनके नुआंसेस पता है पर्सनालिटी के, यू नो आपको पता है। अब जिस तरह मेरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, शी इज लाइक अ सिस्टर टू मी, उसको पता है कि जब इरम चिड़ी होगी तो वो इस तरह बात करेगी और मैंने इरम को इस तरह हैंडल करना है उस वक्त, और उस वक्त शी लाइक्स टू मदर मी अ लॉट। एंड वैसे मैं बहुत बोलूंगी कि तुम मेरी माँ नहीं हो ये वो, बट दैट्स व्हाट आई रियली लाइक बिकॉज आई मिस दैट, यू नो सो वो एक बहुत नुआंस, बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है, और उसमें आपका जो प्यार होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, एक बेलौस इसार का रिलेशनशिप होता है। डू वी रियली हैव दैट विद अल्लाह ताला? क्योंकि अगर तो वो है तो फिर ये चीजें, तौहीद, तकवा, तवक्कुल, ये चीज बहुत आसान हो जाती है। फिर दिल में ना वो डिफरेंट बुत नहीं आ सकते, आहिस्ता आहिस्ता वो सब टूटते जाते हैं। फिर जब आपके परेशानी आती है तो आप उससे गिला भी नहीं करते, वो उस परेशानी में भी एक लज्जत होती है, बिकॉज यू now he wants me to get close to him in a different way. Now he wants me to seek him out, to beseech him, to something, right? So there is, मैं ये नहीं कह रही कि मैं इस तरह की हूँ। कई दफा मैं भी सोचती हूँ कि जब कोई टफ डेज आते हैं तो मैं डाउन हो जाती हूँ, तो मैं एकदम से, मुझे ऐसा लगता है कि ओके, मे बी दिस इज अ रिमाइंडर, जरा इधर आना। अल्लाह क्या कह रहे हैं, जरा बात तो सुने। अल्लाह से प्यारी माँ और कौन हो सकता है? Allah is a creator. Yeah. Teach them to love Allah. Teach them to keep Allah as their best friend, because ये जो रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं दीन के, इस्लाम के,
इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, कोई करेगा, कोई कुछ करेगा, और ये जिंदगी में चेंज होते रहते हैं। मैंने आपको बताया मैं एक तरह की दहरिया हो गई, दहरिया नहीं, बट आई वाज नॉट रियली अ मुस्लिम एनी मोर। नाउ आई अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं अल्लाह की मोहब्बत की बातें लोगों को सिखाऊंगी। I know अल्लाह it's ने kind तब of like you had to go through the darkness to really बाय द वे, step सच to ग्रेट the. सेंस ऑफ ह्यूमर। उसने तब कहा होगा जब मैं 18 साल की थी कि बच्चू देखेंगे फिर हम भी कि तुम प्यार करोगी कि नहीं करोगी मुझसे। जैसे मैंने when I was reading the Quran, I saw this एक translation में, तो मैंने पढ़ा कि did you think that we would not test you? Actually हाँ, मैंने शायद सोचा था कि मैं तो बहुत नाइस हूँ, मुझे तो कोई हाँ, टेस्ट नहीं या व्हाई वुड आई बी टेस्टेड? देना। और ब्यूटीफुल, है मेरी ना, बहुत फेवरेट। है ना, and that was like that seemed like such a dark joke कि ironic, मतलब oh my god, सच्ची में, मतलब मैंने क्या सोचा था, मैं क्यों समझ रही थी कि मैं बहुत नाइस हूँ और मैं If you have a great sense of humor, you will find that Allah Ta'ala has a great sense of humor. कई दफा मैं इस तरह, मेरी बेटियां मुझे कहती हैं, who were you talking to? Like I would just suddenly go, really, dude, really, really, and it's I'm just talking to him. yeah. उसको जिस तरह, कभी वो मेरी सहेली होते हैं, sometimes हाँ, God is my mother, sometimes God is my friend, जो मर्जी, जिस तरह मर्जी, and I refuse to connect with a God क्योंकि वो हो चुका है मेरे साथ. I refuse to connect. I did this interview with Hamza Basi, which he has also made his way back towards Islam, and he has a beautiful relationship with Allah Ta'ala, but his relationship is based on fear that, he's afraid of the day of judgment and he wants to prepare for the day of beautiful. He also, because he did it with understanding and questioning, so he also has a very unshakable faith. If you can find that interview, you might really enjoy it, because we are coming from, yeah, I our paths are different, but our destination is the same, that ultimately it leads to love. तो मैंने उसके साथ जोकिंगली but कहा, मैंने कहा, आप मर्दों को में भी अल्लाह से फियर वाला ही रिश्ता पकड़ना चाहिए, बिकॉज हम औरतों को तो पहले ही बहुत ऑप्रेस किया हुआ है, तो हमें एक लविंग गॉड चाहिए। अल्लाह मैंने बहुत सारे काम दिए हैं एक्चुअली आदमियों को जो कि वो नहीं कर रहे हैं, बट दैट्स देयर जर्नी एंड देयर टेस्ट। हमारे ऊपर जो काम है वो हमें करने, और सोचना तो सब पे फर्ज है, आई थिंक सब हमारे मुस्लिम कल्चर में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was extra kind to women, extra kind. He was extra soft to women. मर्दों के साथ फिर भी थोड़े स्टर्न थे, सख्त थे, औरतों के साथ बहुत काइंड थे. I find the same attitude in the Quran. Allah is एक्स्ट्रा, अल्लाह ने हमें थोड़ा ज्यादा लीवे दिया हुआ है. हम पैदाइशी तौर पे कितनी हार्डशिप से गुजरते हैं. हमेशा औरत दबी भी है, दुनिया भर में ये हुआ है, औरत ऑप्रेस भी हुई है, प्लस हमें फिजिकली द बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें कितनी कितनी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है. सो अल्लाह का वहां पे फिर मुझे ये लगता है कि हमारे साथ थोड़ा जो रवैया है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है. And I always say two things, Allah के favorite नामों में से उसके अपने जो favorite नाम है, Rahman and Rahim. The root word is Raham, which actually is the word for uterus, the womb. So Allah is showing a special connection to women, which He has not shown for men. And there is a verse in the Quran which has been, again, the translation आप कहीं पे भी पढ़ेंगे different मिलेंगी. But Allah Ta'ala ने कुरान में सूरह बकरा में कहा है कि reverence the wombs. The word that is used is wattaqu वाला, वही तकवा वाला word जो तकवा अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, reverence अल्लाह, तो वही चीज अल्लाह ने reverence the wombs कहा है. So wombs only belong to women, not to men. So उसकी ट्रांसलेशन ये कर दी हुई है कि जो वूम्स के रिश्ते हैं उनकी तुम रिस्पेक्ट करो. एक्चुअली दैट्स नॉट व्हाट अल्लाह इज. इफ अल्लाह वांटेड टू से रिश्ते तो वो पूरी बात रिश्ते की भी लिखता ना. इट द वर्ड इज अरहाम व्हिच इज द प्लूरल ऑफ रहम. व्हाई इज अल्लाह चूजिंग टू यूज दैट वर्ड? सो और could it be that Allah is saying reverence the one who has the womb? So it could be your wife, it could be your own mother, it could be your daughter who's going to become a mother. Could it be that Allah is saying reverence the women because इनके साथ मैंने जो इनके अंदर ability दी है वो मेरी खास abilities में से एक उसकी reflection है, which is creation, which is मोजज़ा of life. We don't do it ourselves, but our wombs do it. रूह एंटर होती है इसमें, उस जहान से इस जहान तक आने के लिए जो पोर्टल यूज होता है, दैट इज अ वुमन्स वोम. it is a big, yeah, it's a
surreal experience. हाँ, it's a surreal experience or literally out of body experience. मैं ऐसे कहती थी कि मैं अगर उस कमरे में ना होती जब मेरा बेबी पैदा हुआ था तो मैं बिलीव ना करती कि ये मेरा बेबी. I feel like I was there but I don't understand. यार कुछ होता है, yeah, it's like it's gone, and then you're like, उससे पहले लग रहा होता है क्या मेरी मत मारी गई थी मुझे, like, and then it's just, yeah, you just cannot explain it. I understand what you're saying too, that there is this human being now in suddenly there, वो भी है, but also what The math is not mathing. जो कहते हैं ना कि the math is not mathing. I love it. you know ये तो यहाँ था और ये अब ये है. मैंने आई रिमेम्बर जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो माय फर्स्ट बॉर्न, तो मैंने कहा कि फर्स्ट डे पे ही ना, तो मैंने अपनी अम्मी को, मेरी अम्मी ने उसको पकड़ा था, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि अम्मा का बेबी पैदा हुआ है. आई जस्ट कुड नॉट, आई वाज द वन इन द बेड एंड आई वाज लाइक नो बट ये इनका बेबी लग रहा है मुझे. ब्रेन इज नॉट computing. Yeah, it doesn't. It's really, it's a very surreal, very different experience, very euphoric. इसीलिए बार-बार फिर औरतें उस तकलीफ से भी गुजरती हैं. But yeah, it's a very different experience. unbelievable. By the way, I want to say this to anybody watching or listening who may not have been able to become a mother. This is true for everybody. This is the fact that you were born a female, whether you got your uterus removed or not doesn't matter, but I'm saying that for the fact that you have that miraculous thing in your body, that organ that creates life. It's you have a special connection to Rahman and Rahim. और जो रहम है, जो मर्सी है, जो औरत मांगता है, वो भी अनमैच्ड है इसी वजह से. उसका कोई है ही नहीं. There is just no comparison to it because it connects to Raham, right? इसीलिए तो कहते हैं ना, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है. है ना, आई मीन फोक विजडम एंड ऑल दैट अब यही कहता है. I just want to say thank you for your time today. Really fun talking to you, and as always, I spoke more than I let you speak. Maybe next time मैं चुप कर गया. मैं ज़्यादा नहीं, मैं I'm inspired by all the women that I'm speaking to, and I want to learn, and that's I love what you are doing. I think it's so important. Please keep doing it. ये बहुत important चीज़ है. There are amazing stories out there, as you know very well yourself. और we need to tell those stories. We need to talk about that stuff. Thank you so much for making the time, and I hope we'll meet in person soon, inshallah. Inshallah.